Guys, I'm audible now. Okay. I actually wanted to talk about a few things. First thing being the way it happened, and then what followed, and then we will hear from people there as well on their perspective. So, to start with, what happened? Why? So this is actually a continuation of uh, the defeat since 1940s, I would say. 1971 is the known one, but the situation has been going since 1940s as well. Ever since US lost control of the Great Hump, I mean, US has been trying to take a foothold in those areas, and since then, I mean, since they lost the Silk Road, they lost the direct access to China. So that's the context. Whatever followed was after, uh, mm, I mean, it's a residuary results of whatever was not possible for US. So now, fast forward to 1971, they had a worst defeat of sorts. It actually didn't stop there. It was preluded. It had a prelude as well, a SEATO, an Asian NATO kind of a thing. So what happened there was it had some kind of success in containing India and China, but then it was not possible fully. That's because India Pakistan had a very strange geography. It was split on both sides. Now, when you have a country split like 1,000 miles away, then there is a problem. It won't be so easy to contain. And also, Pakistan as such, when I say Pakistan, the West Pakistan as such is a multilingual setup, whereas Bangladesh is not, and it's just a unitary kind of a system. So anything that happens in Bangladesh, had Bangladesh been more diverse, maybe 71 may Pakistan wouldn't have lost. On the CR2, the very reason why they wanted to contain support Pakistan was to support was to contain China and India with a s- foothold somewhere in um erstwhile East Pakistan, current day Bangladesh, if in case the need arises. That's the very closest roadway to road route to China, and that's how they controlled the opium trade and everything. So right now, Bangladesh is just one single small piece of the bigger puzzle out here. The current discussion is all about. You might have seen the change in governors and all in India's northeast. That's all a positioning for the action uh, scenario. So we are currently positioning our men. We are currently having a setup being put in place wherein it can handle not just the Bangladesh crisis but also the next step, which is Golden Triangle. And you can refer to my tweets on Golden Triangle as well. So that's happening. So I mean, the erstwhile Seattle actually wound up.
because in 1973, Pakistan was angry that US didn't come to support Pakistan as it desired, मतलब बिना पैसे के. So right now, what is happening is it's the same scenario, just that Pakistan is very scared to put its foot on ground. Conventional war तो वो जीत ही नहीं सकता, कतई जीत नहीं सकता. And if you ask me if US will put its foot there, no, it will fish in troubled waters. So that's what the scenario will be at least for some time now. Now now the way it happened was very brutal, and it will happen. I mean, I've been posting since yesterday on how certain things happened. I mean, I'm just connecting dots out here. In By December, all the key members of UNIS returned to Bangkok. They were given assignments and they had um, wound up all their assignments by 31st December 2023, and then they were back in Bangkok. And when, technically speaking, when the election results were announced in Bangladesh, they were actually in Bangkok, brainstorming or doing whatever they have been doing. And within 20 days, Jack Sullivan goes to Bangkok and he meets Wangi. Now you can understand what Wangi could do. And Wangi was at the same time talking to India and begging for peace. Now the problem is, was China aware of what is going to come up for Sheikh Hasina? We don't know yet. Te- I mean, but it's not out in the open. But what we can do is we can actually go back and see when Hasina went to uh, uh, Beijing. She came back. She cut short her trip and came back. Why? So what I'm saying is that China is very well aware, and this is the only proof that we have. We can only connect dots out here. We don't have a proper answer to this yet. You can read whatever, but then this is what it is. Now the next step is to have Yunus back in uh, uh, Dhaka. How that happened? So when Jake Sullivan was in Bangkok in Jan 2024, he actually might have delivered uh, the information that okay, you'll be called up, so come and join, have party. So there's an old thing between Sheikh Hasina and Yunus. I mean, I wouldn't be able to speak uh, about it publicly, but then those who know. And that guy is one filthy uh, guy, and Yunus is the most contempt. I mean, Yunus has the most contempt for Sheikh Hasina, and vice versa. There's no way that I mean, Hasina might even patch up with BNP, but not with Yunus. It's that bad. I mean, I'm just putting in a hypothetical. I'm not intending to for it to happen as is. But then the way it'll go forward from here is that Yunus will ask for extradition. India will say no. Yunus will send a warrant of sorts. He knows the consequence, but he will bash on regardless. Because uska kya ja raha hai? He has nothing to lose. He's an unelected dictator and a terrorist further. Yunus also has more like the RSO, at one point was uh, talking to the Myanmar junta, and it's that bad. And Arakan Army is taking care of it. Arakan Army didn't like them, so that'll happen. That has its own thing.
So now back to Hasina and this. See, now currently the only way forward is to have a, a democratic alliance or a tactical democratic alliance. You may disagree with each other later, but then it's very important that the democratic forces within Bangladesh unite. At what level? That's up to them. Openly, covertly, that's up to them. But then the biggest problem is Jamaat and uh, the idea of Pakistan-based others, the non-state actors. West will make you dirty your hands, and then they will move out. Ultimately, you have to what live with your people. So I mean, like, it's better that you find a solution within. है ना? To I mean, at some point, it will happen. Not in the same tone and tenor that I put it out right now, but then ultimate aim will be to kick out the Western, the mm, Seattle members. Acha, one more thing I missed. Yunus was working with Asian Institute of Technology. It was actually founded, it was actually a funded organization of Seattle. Seattle is dead, but the organization is still there. Many of the Seattle members who were not able to get what they desired politically were sent to such institutes. It's more like a parking space for damaged cars. So that's something which so all along, whenever uh, someone, I mean, Yunus went to Bangkok, or delegation went to Bangkok from West, they actually met Yunus as well. It's a continuing theory, and not just Yunus, but some of the leaders from India also go to Bangkok very often. So I mean, these things are connected, by the way. And when when uh, when Jack Sullivan was in Bangkok, the same way, someone very important was in Manipur as well. Think it's all connected. So you can't speak about Bangladesh only. I mean, if you have to secure Bangladesh, you have to secure the whole region. So I would like to open now the mic to others as well. Uh, if anyone wants to talk, just raise your hands, please. Arfin, I had given you a mic, but then I'm not sure if you are able to pick it up. Anyone wants to speak now? So, okay. So, just continuing about it, like, so currently I'm getting to see a few updates. One, some kind of resistance force has been organized to operate in Bangladesh. Uh, right now, they are within Bangladesh, and they have been doing a lot of work on the ground, and some of them, some of them have actually initiated a movement of painting Joy Bangla on or some supporting graffiti on walls. So it has become a movement now of sorts. So maybe I'll invite Arfin who can elaborate on that.
Yeah, BMW bhai. Hello. You mute. You're on mute. Sir, Yes, sir. sir, namaste. Yeah. Sir, I live in a very small village in Telangana, and I regularly follow your tweets, sir, जो भी regarding national security and international relations. Sir, I have nothing to add to your analysis, but I just want to request you to kindly keep us posted on the latest happenings with regards to Bangladesh crisis, sir. This is my request. So, I am dependent on a lot of people, friends from within, who can give me like on-ground situation updates. We'll be getting in a lot of updates in the coming days, a lot of them, and we'll have daily sessions like this, which can help more clarity on what is happening. We are also having some uh, friends who are here, but then they're not able to connect, who can give a lot of updates on this. Uh, Yes, Let me sir. just, मतलब जितना भी हो सके, there are not many reliable sources are present there. बहुत ही कम ऐसे no, sources. actually there are, है ना? Okay, तो so I'm not you aware have, of that, sir. so you have to follow the right people. Yes, yes, sir. That is the problem, sir. So yeah, yeah. So I mean this there are a few people who are actually doing a very good job on in bringing out things. Uh, in I mean there is a handle called A Team. Uh, Okay. I I mean I don't know if you guys follow, but in 1847 करके. So I mean 71 करके. So those guys are doing a really good job. And yeah, so I mean you have to follow the right people, Yes, sir. follow the hashtags, and filter out people who you can follow or rely. Over time you will know. Yes. तो Sure. हम भी तो ऐसे ही सीख रहे थे. So yeah, But yeah. we are all worried about this Bangladesh crisis, sir, because इससे पहले हम जो 2.5 जो ये था फ्रंट था उससे लड़ रहे थे हम. No, But you're actually looking at the wrong way. sir, Bangladesh ka, they will take care. You just need okay, to support the people. okay, What sir. you need to worry Bangladesh about is will the be safe. what you need to worry about is the refugees and Okay, the illegals who are already here. okay. Okay, that's going to be a main scenario. Any action that has to happen in Bangladesh, yeah, Bangladesh people are self-sufficient to handle it. You just need to Okay. support it uh, to reach them a critical mass. बाकी वो देख लेंगे. Okay, Sir, so are we going to see I don't any know. I'm as informed movie? as you. No, like I was talking about this include क्या बोलते हैं इसे refugee crisis के बारे में, sir. Are we going to see any action from the government side? It's already happening. You need to watch what is happening. But see, we have enemies within our country, so they'll See, help you fighting. don't sound paranoid. Government is 10 steps ahead of it of these things. कोई मानेगा नहीं. I mean, who would have thought? है ना? तो things are happening. Uh, Yes. At the so same time, the judiciary is not also very helpful in this subject. जितना भी मुझे limited knowledge है, I mean the judiciary is also they are that's taking okay. That's okay. humanitarian view. That's okay. That's okay. We are a Mhm. democratic country, so we Yes, can have yes, an adverse judgment. So yes, I sir. mean, like just to like go back to the topic, we'll stick to the Bangladesh. Sure, Okay. sure, sure. Now let me invite Arfin. Arfin Okay. bhai, Thank you for the opportunity, sir. yeah. Thank you. Arfin bhai, you're on mute. Yeah, thank you.
Yeah, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सब लोग कैसे हो? सब ठीक भाई, सब ठीक। Yeah, go ahead. शुक्र अल्लाह। तो अभी जो हो रहा है बांग्लादेश में तो सही नहीं हो रहा है। Hmm. They are A doing short introduction, please. yeah, I'm from Bangladesh. I'm a Bengali, and now right now I am outside of my country for my safety, and also I am a leader of Bangladesh Awami League. Okay, interesting. Yes. Okay. Ask me, Dada, what do you want to know? So, I mean, tell me what is happening, the ground situation. Right now, BP and Jamaat are both are doing the same thing. They Hmm. are doing the same thing because they want to establish the 1971 the when Pakistan are defeated with Indian and Bangladesh also. Mm-hmm. तो वो जो रिवेंज है ना पाकिस्तान को रिवेंज लेने के लिए ये सब Hmm. हो रहा है अभी। Hmm. 1971 में उस लोग बांग्लादेश में विन कर नहीं सका, Hmm. तो उसका जो धीरे 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 Hmm. बांग्लादेश में घुसकर अभी बांग्लादेश को उस तरह ले जाया कि बांग्लादेश को ध्वंस भी करेगा और पाकिस्तान इसका रिवेंज भी ले जाएगा। Hmm. तो Abhi, I जमात mean, इसका मेरे को ना, I mean, I was actually surprised that Jamaat had collected so much detail about 1971 war heroes. इतना डिटेल, I mean, काफी डिटेल है उनके पास. So, I mean, like, डिटेल तो how है, is the वो government लोग not बहुत aware? साउंड है, टेक्नोलॉजिकल बहुत साउंड है वो लोग, Hmm. टेक्नोलॉजिकल बहुत साउंड है। वो Hmm. ऑनलाइन में वो जो प्रोपागेंडा किया है जुलाई अगस्त में वो भी जमात का क्रिएट करना था, Okay. क्रिएटेड बाय जमात, एंड Hmm. वहाँ पर लाइक एंड शेयर का किया कौन? बीएमपी। बीएमपी का Hmm. मतलब है देश जहाँ जो जाए उसको क्षमता सत्ता में आना है, तो ये Hmm. था बीएमपी का क्या कहता है मोटिव। तो Hmm. और अभी क्या हो रहा है बांग्लादेश में, बांग्लादेश को टोटली इकोनॉमिकली जो हमारा नीति जो लास्ट 15 और 16 ईयर्स हम लोग Hmm. काम करके बांग्लादेश को एक स्थान पे ले जाया था, तो वहाँ से कैसे हटाना जाए, कैसे उसको ध्वंस कर जाए, वो कर रहा है अभी। तो ऐसे ऐसे में बांग्लादेश में जो अभी हिंदू किलिंग्स हो रहा है, जेनोसाइड कर रहा है चिटांग में, सिलेट में, कुमिल्ला में, वो भी एक पर्पस है। आपका भीतर जब एक डर आ जाएगा ना तो आप लोग कोई नहीं सामने Hmm. आओगे। अभी देखो Hmm. चिन्मय दास प्रभु को अरेस्ट किया, उसको उसको लिए कोई बात है? Hmm. कोई बात नहीं है। Hmm. आस्ते आस्ते धीमा भर गया है, क्यों? वो सब लोग अभी मार रहे हैं, कोई प्रेशर केस क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे करके लॉ एंड ऑर्डर के उस तरफ एक कब्जा कर लिया उसने। तो Hmm. अभी जो हो रहा है जो not only Hindus, here also the activities of Bangladesh Awami League, the Hmm. supporters, the workers, who are say Joy Bangla, they kill the people. So why you Hmm. saying the Joy Bangla? Because Joy Bangla में क्या है ना, एक पावर है, एक नहीं, पावर है, नहीं, 1971 का पावर है। स्लाइट डिफरेंस है जॉय बंगला में. हाँ जॉय बंगला इज, सी, यहाँ पे ना आइडिया ऑफ पाकिस्तान का रेफरेंस लेना जरूरी है. हाँ सी, लाइक आई वाज सेइंग अर्लियर, पाकिस्तान में द यूनिफाइंग फैक्टर इज उर्दू. यहाँ पे वो नहीं है. हाउ विल, इफ बांग्ला एग्जिस्ट, हाउ विल द आइडिया ऑफ पाकिस्तान बी पॉपुलर इन बांग्लादेश? सो क्या कर रहे हैं? दे आर न्यूट्रलाइजिंग बांग्ला by, see, that's why I was actually telling someone, I was actually posting also, you should be very happy that the radicals are speaking in Bangla. They are हाँ, preaching in Bangla. The राइट moment you know they have reached a critical mass when they start speaking in Urdu to you. राइट राइट। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम है. नाउ Bangladesh is one area. See, 1971 happened only because of Bangla. राइट, अगर, if you were speaking Urdu, you might not have even come out. डेफिनेटली You know, बांग्ला जो भाषा आंदोलन से स्टार्ट हुआ ना, why? So भाषा now आंदोलन they are से finishing स्टार्ट it. हुआ। Now they are finishing it. That ना is ना, why फिनिश Joy फिनिश नहीं Bangla कर has. सकेगा वो फिनिश नहीं कर सकेगा। वो थोड़ा बहुत अभी जो हो रहा है, थोड़ा बहुत क्षति हो गया है, बट वो फिनिश नहीं कर सकेगा दादा। मैं I आपको know, ये I करो, know, but फिनिश नहीं कर सकेगा that's बिकॉज बांग्लादेश में 17 करोड़ पीपल है।
हाँ, तो यहाँ पर 17 करोड़ में 6 तो 7 करोड़ है आवाम लीग, तो बाकी कितना रहता है? बाकी रहता है 10 करोड़। तो 10 करोड़ में 2 करोड़ होगा बीएमपी जमात अभी जभी जो है, और 2 करोड़ होगी, 1 करोड़ है जमात, तो क्या हुआ? 10 करोड़ हो गया है मेरा। 7 करोड़ और वहाँ पर 3 करोड़। तो अभी जो 7 करोड़ है वो जो आम पब्लिक, ये आम पब्लिक क्या है? खाता पीता है, सोता है, उसका कोई दिमाग ही नहीं है। वो दिमाग ही नहीं एग्जैक्टली, खाता है, वो दिमाग ही नहीं एग्जैक्टली, खाता है। जैसे जाए एग्जैक्टली। जाए, जैसे जाए जाए, मैं तो जीत रहा हूँ, मैं तो खा रहा हूँ, जैसे बांग्लादेश जाए जाए, मेरा क्या आ जाता है। तो क्या है ना, मेरा भाषा, मेरा जो घर है उसको जला दिया। मैं क्या किया? मैं पुअर पीपल को खबर दिया, पीपल को हेल्प किया, क्या लाभ हुआ? मेरे घर जल रहा है, वो डरा के वहां पर वीडियो कर रहा है, हाँ मुल्ला का घर जल गया। तो ये पीपल है ना, इसको किसने जताते? तो वो जो बात कह रहा हूँ मैं, जो ये पीपल कब हमारे साथ है, जब हम स्टैंड करेंगे तब जाके, हाँ आमली ठीक कर रहा है, वो हमारे साथ के खड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो अभी जो हो रहा है, जो हम लोग क्यों चुप है? ये जो, हाँ, some educated people also stop their mouth because they got backup from the Bangladesh army. They got the backup from Bangladesh army. सब लोग को पता है, जो अभी जो हम लोग विरोध करो तो हमको उठा के ले जाएगा, हमको मार देगा। तो उसके पीछे कौन है? कौन है? बांग्लादेश आर्मी है। बांग्लादेश, एक एक पर्टिकुलरली बांग्लादेश आर्मी अभी क्या है ना, कंट्रोल बाय आईएस। दे आर टोटली कंट्रोल बाय आईएस। उसका सभी राजाकार हो गया है। बांग्लादेश आर्मी का जो एक भी बंदा मैं नहीं कहूंगे वो बांग्लादेशी है, सब राजाकार हो गया। क्यों राजाकार हो गया? ये सालों ने तुम लोग को बांग्लादेश में जन्म ग्रहण किया, बांग्लादेश का खाता है, बांग्लादेश का पिता है, तो तुम कैसे पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे हो अभी? तुम किसका औलाद हो? तुम कैसे 1971 का तुम भूल गए? तुम्हारे सामने जमात इस्लाम कैसे पीपल को किलिंग कर रहा है? व्हाई यू स्टॉप योर माउथ? व्हाई यू सीइंग दिस? इसको कोई जाता नहीं है। वो सब लोग क्या करते हैं वहां पर घाट करके, वो सब लोग, वो समन्वयक जो को कहता है ना बांग्लादेश में समन्वयक, वो जो सब साला टेररिस्ट है, ये मिलिटेंट है। तो इस मिलिटेंट गवर्नमेंट ने जो हेल्प कर रहा है कौन? आर्मी। व्हाई? तो अभी जो बांग्लादेश से बाहर जो इंटरनेशनल कंट्री लाइक फ्रांस, इताली, कनाडा, जर्मनी, जो सब लोग उसका टैक्स का पैसा जो यूएन को देता है शांति के लिए, तो यूएन का अभी भी, अभी से अभी बांग्लादेश आर्मी के ऊपर बैन करना दे चाहिए। जब तुम यूएन से निकल रहा हो, तुमको, तुम्हारे को सैंक्शन दे रहा हो, वो भी उसको कुछ आती रहती जाती नहीं है। क्यों है ना? वो सभी अभी पाकिस्तान से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के अंदर घुस गए अभी। पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर आके नहीं घुसा, बांग्लादेश पाकिस्तान के अंदर के घुस गया। क्या है ना, बांग्लादेश आर्मी अभी पाकिस्तान आर्मी से टोटली कनेक्टेड हो गया। तो दे कंट्रोल बाय, दे नोस, बांग्लादेश आर्मी नोस टुडे टुमारो देयर विल बी सैंक्शन। तो उसको उसको वो जानते, उसको जानता है, तब भी उसको कोई आता मैंने क्या कहता है, इसको कुछ आता जाता नहीं है। बिकॉज दे they want to do a massacre in Bangladesh as well as, मैं किंतु पहले से कह रहा था बांग्लादेश के तो टारगेट नहीं है, टारगेट है भारत का। जब भी मोदी जी का कैंपिंग हुआ उस तरफ से स्टार्ट हो गया। मोदी जी के पहले ट्राई किया हटाने के, जब भी मोदी जी को नहीं निकल सका सत्ता में, मोदी जी फिर आ गए, देन द टारगेट बांग्लादेश। क्या है ना, आपका जब पेट में दर्द होगा, आप सारा दिन में फुल बॉडी में वो पेन रहेगा। तो बांग्लादेश को जन्म कैसे हुआ? बांग्लादेश को जन्म हुआ है द हेल्प ऑफ इंडिया। कोई जो अस्वीकार करेगा वो सारा बंगाली नहीं है, वो सारा बांग्लादेशी नहीं है। क्या है ना, तब जो भारत हमको हेल्प ना करता था तो हम 1971 में विन करते, मैंने ऐसे विन नहीं कर सका, मैंने वेरी शॉर्ट टाइम वी डिफीटेड द पाकिस्तान आर्मी, राइट? तो क्या है ना, भारत में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए बांग्लादेश को चाहिए। दैट्स व्हाई दे कैप्चर्ड फर्स्ट बांग्लादेश। का रूट क्या होगा? रूट होगा बांग्लादेश। वो जो देखो बांग्लादेश का जो रोहिंग्या है, ये जो मिलिटेंट गवर्नमेंट है यूनुस का, वो ये रोहिंग्या को कहाँ भेज रहा है? ये रोहिंग्या को भारत में भेज रहा है। क्यों लिए? किस लिए? बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर एक्टिविटीज। तो ये है इसका मेन मेन जो है ना, पाकिस्तान का मेन जो टारगेट है, डू ए मैसेकर इन भारत। दैट्स व्हाई दे कैप्चर बांग्लादेश। और बांग्लादेश को नहीं, बांग्लादेश को कैप्चर करने के नहीं आया है यहाँ पर।
तो उसको क्या कैप्चर करोगे? वो सारा तो घुन में घुल जाएगा, या तो घुन खाकर या फिर खोखला कर दिया हमको। तो फर्स्ट कैप्चर कर रहा है बांग्लादेश को, और बांग्लादेश को रूट करके अभी उसका टारगेट है भारत। वो जो पहले ही मैं कहा था जहाज आ रहा है, जहाज में आर्म्स है, RDX है, मेरा भी बहुत सोर्स है, मैं वो सोर्स को मैं काश कर के वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मैं दे रहा था, मैं बोल रहा था। हम्म तो अभी जो क्या हुआ ना, वो तो सही हुआ है। हम्म तो तो और अभी भी आई एक मीन लाइक और भी एक अभी 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 जो बंगाल में बे ऑफ बंगाल में कंट्रोल है भारत के में, बे ऑफ अभी जो पाकिस्तान का जो नेक्स्ट शिप यदि आ रहा है, नहीं आएगा अभी, अभी बे ऑफ बंगाल में वो नेक्स्ट शिप नहीं आएगा, बिकॉज वो लोग जानता है कि अभी मोदी जी वहां पर आंख खोलकर बैठा हुआ है। आप जब आर्म्स एंड एमुनिशन ले आओगे आपको डुबा देगा। तो क्या है ना, तब पाकिस्तान जाके आप जो उसको शिप को डुबाओ दे, तो पाकिस्तान कभी नहीं स्वीकार पाएगा जो ये मेरा शिप था, वो क्लेम नहीं करेगा। कहेगा तो सब तो आया क्या था वो शिप में, आया क्या था? RDX आया था, RDX आया था, आर्म्स आया था, एमुनिशन आया था। तभी जाके आप देखो चिन्मय प्रभुदास को कहाँ पे अरेस्ट किया? अरेस्ट किया चिटागोंग ढाका में, में। ढाका में, ढाका में। ढाका, हाँ। अच्छा, तो उसको लेके गया सीधा चिटागोंग, हाँ। लेकर गया चिटंग में, क्यों? सबका नजर चिटंग में ले जा रहा, वहां पर ले हम्म गया, वहां पर किलिंग स्टार्ट कर दिया हिंदू को, वहां पर जेनोसाइड स्टार्ट कर दिया। क्यों? सबका दिमाग, सबका नजर वहां पर ले गया। यहाँ से वो हम्म सब धीरे से वो आर्म्स एंड एमुनिशन डिलीवरी लेकर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हम्म सबका नजर था चिटंग में, बट हम्म यहाँ पर ये लोग एक काम घटा दिया। तो क्या है ना, हम्म उसका एक शिपमेंट में क्या होगा, 40,000 करोड़ का माल आया है। तो पाकिस्तान तो हम्म अभी है कंगाली पाकिस्तान, एक कंगाली को क्या सऊदी में वो भिक्षुक बसता है। हाँ, तो हम्म सऊदी गवर्नमेंट उसको कहा कि आप भिक्षुक मत भेजो मेरा सऊदी हम्म में हज हज के टाइम भिक्षा करने के लिए। हम्म तो उसका भी एक धंधा है भिक्षा करने। तो क्या ना, हम्म इसके बाद भी कंगाली पाकिस्तान के पास कैसे इतना पैसा आया? वो है हम्म ना, वो तो अफीम का वो चार्ज करता है ना, अफीम है वो इलीगल इलीगल जो वर्क है, हम्म हम्म उसके थ्रू उसके पास इतना पैसा आता है। और उसका जो बाप है, जो सारा बांग्लादेश, सारा पृथ्वी में इस्लाम के नाम पर टेररिज्म का काम कर रहा है, वो है ईरान। हम्म पैसा वहां से भी आता है, पैसा तुरुस्क तुरुस्क से भी आता है। तो वो को अच्छा। बात नहीं है। तो द थिंग इज, अभी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अभी जो स्टॉप हो जाएगा ना, एक मंथ में टोटली आउट हो जाएगा, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा, तब जाके देखना खेला शुरू हो जाएगा। अभी भी ये वो कब की जानता बात है, है ये? वो आई जानता है। मीन, हाँ नहीं, ये कब होगा? ना, 20 जनवरी क्या है ना, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के पास एक फाइल है, एक रिपोर्ट जमा हो रहा है जो क्या हो रहा है हम्म बांग्लादेश में। एवं इस जो हुआ है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन करके गया है, इसलिए हम्म बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है अभी, उसका टोटल ब्लेम उसके ऊपर आ जाएगा। देखे वो अभी कह रहा है यूनेस्को, आप ये मत करो, आप ह्यूमन राइट्स को कंट्रोल करो, ह्यूमन राइट्स यही है, ये सब कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्यों कह रहा है? वो जब उसके ऊपर जब ब्लेम नहीं आया, तो टोटल हम्म ब्लेम उसके ऊपर आ जाएगा, वो जानता है, इसलिए वो अभी वो स्टेटमेंट दे रहा है। बट द क्या हम्म है ना, ट्रम्प जब आएगा, ट्रम्प कहेगा मोदी जी आप बांग्लादेश को संभलाओ, वहां पर पीस स्टैब्लिश करो। ट्रम्प आके डायरेक्टली मोदी जी को कहेगा आप बांग्लादेश को संभलाओ, आपका पास है, आपने आपका आपका बहुत आभारी हो, बांग्लादेश आभारी है, बिकॉज 1971 में भी आप बांग्लादेश को हेल्प किया, अर्शित अभी आप भाई, बांग्लादेश को संभलाओ। एक एक चीज है। हम्म। सी, यूएस विल नॉट इंटरफेयर अनलेस दे आर वेरी श्योर कि उनको पैसा कुछ मिल रहा है। ना ना, ना, अभी उसका अभी उसका क्या है ना, उसका अभी इंटरेस्ट है। ना इंटरेस्ट क्या है, मैं आपको पॉइंट दे रहा हूँ। पॉइंट नंबर वन, जब कमला हैरिस का उसका जो एंट्री था, कमला हैरिस को ये जो मिलिटेंट गवर्नमेंट है यूनुस, वो हेल्प किया है, बहुत पैसे डोनेट किया है। वो जाके बिलियन क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन के साथ है, हिलरी क्लिंटन वेरी क्लोज है हिलरी क्लिंटन के साथ, बिलियन क्लिंटन के एक प्रोग्राम में जाके भी कर। तो ट्रम्प नहीं छाड़ेगा ना। अब पहले जब ट्रम्प का टाइम था, जब ट्रम्प ने प्रेसिडेंट हुआ था, उस टाइम जब ग्रेट नेशन यूनियन का प्रेसिडेंट हुआ था उन्हीं, तब भी यूनुस उसका विरोधिता किया, तो वो उसने यूनुस को नहीं छोड़ेगा ना।
पहले 20 जनवरी तो मैं कहता हूँ 25 जनवरी की 26 जनवरी, सी 25 से ऐसा 26 है जनवरी खेला खत्म हो जाएगा उसका। आसिफ 25 भाई, से ऐसा 26 है। जनवरी खेला खत्म हो जाएगा। इस 1 मंथ में वो जा करना चाहिए, वो करेगा। इसलिए अब देखो दिल्ली में, अब दिल्ली में टेररिस्ट अरेस्ट हो रहा है। वो कम फ्रॉम, वेयर हम्म कम फ्रॉम, दे कम फ्रॉम बांग्लादेश। हम्म अब मुर्शिदाबाद में हो रहा है, असम में भी हो रहा देखो। है, त्रिपुरा में भी हो रहा है। तो क्या है ना, हम लोग बार बार कह रहा था हो रहा है, हो रहा है, होएगा। तो जाके somehow they also ओके क्रॉस चेक कर, क्रॉस चेक करते ये ही निकल आया, हाँ यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविज्म हो सकता है, यहाँ पर इलीगल बांग्लादेशी है। हाँ, तो ऐसे ऐसे हो रहा है अभी। तो ये हमारा सक्सेसफुलनेस है, ये भी हमारा सक्सेस है जो हम सक्सेस हुआ है। हम्म अब क्या जाने See, कहना अभी कहाँ है। अभी 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 ना, I mean, just to add to your points, see, अभी क्या हो रहा है, दो चीजें होगी एक्चुअली। फर्स्ट, जो इलीगल है, आई मीन, एस्टिमेट इज दैट 5 करोड़ के आसपास, मतलब 50 million refugees और rather illegal immigrants are here. वो कैसे आए, आई डोंट नो, बट है, एंड हाँ एवरी सिटी में है, हाँ एंड these people will be pushed, है ना? तो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, द वेरी आइडिया ऑफ पाकिस्तान is a bit flawed, or further it is a flawed thing. um, the I mean, like I used to say, like partition of Bengal is the first mistake in South Asia, है ना? तो वो हो गया अब, मतलब now things are in a different tangent now. ज्यादा से ज्यादा वायलेंस कम कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो हम उम्मीद भी नहीं रखते। क्या है ना, अभी देखो अराकान आर्मी बांग्लादेश में अटैक किया है। नाफ नदी, हम्म नाफ नदी टोटल कंट्रोल, दे टेक द टोटल कंट्रोल ऑफ नाफ नदी। कोई मीडिया में आया है? नहीं आया है। तो अभी जो हो रहा है बांग्लादेश में, वो पाकिस्तान आर्मी आ रहा है, कहता है जो वो जब बांग्लादेश आर्मी को ट्रेन करने के लिए वो आ रहा है। हम्म वो सही नहीं, बात नहीं है। बात है हम्म जब पाकिस्तान आर्मी आ रहा है अभी यहाँ पर बांग्लादेश का आर्मी के साथ, अराकान के साथ फाइट करने के लिए, तो आ जाओ, हम्म कोई बात नहीं। तो जब हम्म। आएगा तो आप क्या क्या करोगे? इंडिया के चुप बैठेगा? आपका आपका क्या मतलब, इंडिया के चुप हम नहीं क्या क्या बैठेगा? करेंगे? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं, डेफिनेटली अभी अभी डेफिनेटली। आपने जो मैं अफीम की पहले बात से अभी बोली। तक यही बात कर रहा हूँ जो मोदी जी क्यों चुप है? मोदी जी देख रहा है रे बाबा। मोदी जी जब खेलेगा तो कोई नहीं और खेलेगा। हम तो क्यों चुप हैं, इसका जवाब मैं दे सकता हूँ। या प्लीज। सी, पहली बात, एक सेकेंड। पहली बात, आप जो कह रहे थे अफीम का, है ना? तो हाँ डेफिनेटली। उसका फंडिंग पहले रोकना है, ठीक है? जब तक वो नहीं रोकेंगे, टेररिज्म चलता रहेगा। एंड एट सम पॉइंट, आपको क्या लगता है पैसा कहाँ से आ रहा है? इंडिया से आ रहा है अफीम का। वो कैसे? अभी, आई मीन, सिंस यू मेंशन्ड अफीम, this handle Nepal correspondence by, I'm not sure if he is online. राइट। उसने एक एक्चुअली पॉइंट भेजा था, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हामिद गुल जब था, जनरल हामिद हाँ, गुल जो आईएसआई के हेड था, ऐसा का था। तो उसने खैबर पख्तूनख्वा में ही फंडेड ग्रुप्स लाइक हकानीस, है ना, टू कल्टिवेट पॉपी, एंड the same model was copied in Bangladesh by terror outfits like Jamaat और बाकी इत्यादि इत्यादि। नाउ यही चीज कुकीज ने स्टार्ट किया, और कुकीज ने इसीलिए स्टार्ट किया बिकॉज दैट लैंड वेयर कुकीज आर, वो बहुत फर्टाइल है। इट्स इन द इट्स अ वेरी फर्टाइल लैंड, एंड कुछ भी डालो तो it's a hilly terrain, but then it's actually very fertile. Same thing with the Chittagong tracks, hill tracks. Now, Mizoram, Manipur में जो कुकीज कर रहे हैं, that is again linked to the Golden Triangle, Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia, है ना? So all these things matter. जो larger picture है, बांग्लादेश
के लिए बाहर से कुछ आने की जरूरत नहीं है, अंदर से ही बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि कहाँ तक जा सकती है। अगर आई वाज पोस्टिंग दिस टुडे मॉर्निंग भाई, मतलब अगर हमने कुछ जल्दबाजी में कुछ कर ली, we wouldn't be able to handle the refugees who will pour into India on all sides. अभी तो हम फील्डिंग कर रहे हैं, लोगों को उधर उधर लगवा रहे हैं। सो बाद में there will be, when there is some action with, I mean, बुलेट फायर होगा नहीं होगा पता नहीं, बट अगर कुछ होगा तो it will be, the first task will be to handle the refugees who will start pouring in. So we are not fearful of Bangladesh or the Americans who will step in there. We are actually a bit concerned. देखो, I mean, it's one thing to start shooting people who arrive at our borders. वो नहीं करना चाहते because at some point we have the tendency like ठीक है मतलब I mean Bangladesh also is part of India, तो वो नहीं करना चाहते. But if push comes to shove, I think government is very much prepared for all contingencies. अब वो कैसे क्या करेंगे? I have very slight idea, but then confirm होने देना, we'll know. And also जो अराकन आर्मीज जो refugees push कर रही है into Bangladesh, uh, that again is a cause of concern because we don't want one more non-state actor to have access to the sea. ये एक्चुअली बहुत अ, बहुत बहुत आई मीन सीरियस मैटर है. एनी नॉन स्टेट एक्टर हैविंग एक्सेस टू सी इज अ सीरियस मैटर. एनी सुपर पावर कैन इंटरवीन. वो भी है इश्यू. नाउ if at all they attain some kind of a critical mass and then they proclaim independence, it will be a legitimate country, जो कि हम नहीं चाहते आज के दिन में. At least as of today, we don't want Myanmar to be partitioned. Lastly, आज का जो न्यूज आया, जो आपने बोला ना शिप में आरडीएक्स आया, आई थिंक सम पाकिस्तानी रेंजर्स हैव आल्सो अराइव्ड और पाकिस्तानी पुलिस हैव आल्सो अराइव्ड. समवन पोस्टेड अ पिक्चर टुडे. उनका यूनिफॉर्म बांग्लादेश पुलिस का यूनिफॉर्म नहीं था. Those were actually पाकिस्तानी लेवीज बोल रहा हूँ, पाकिस्तानी पुलिस और रेंजर्स की यूनिफॉर्म, सेम व्हीकल्स. ऐसे कैसे? सो वो भी है. एंड स्ट्रेंजली आईसिस ने भी वही कपड़े में सिलवाए थे. सो बी कॉशियस व्हेन यू मूव अराउंड इन बांग्लादेश. This government is up to something very nasty. Uh, that's it. So anyone else want to? Okay, Arfin bhai, one more question for you actually. uh, ये जो इनसे आ रहा है, जो अराकन आर्मी का जो क्लैश हो रहा है कैप्चर्ड बांग्लादेश एरिया करके, उसका कोई फोटो वीडियो कुछ एविडेंस है क्या, या फिर ऐसे ही आ रहा है? हाँ मेरे पास है. वो जो बांग्लादेश मीडिया अभी उसको देखा नहीं देखा रहा है अभी, बट थोड़ा जो हम लोग जो कंसर्न है उसके पास वो आता है. तो मेरे पास भी थोड़ा बहुत वीडियो सम पिक्चर ऑल्सो भी आ गया है. जो नफ नदी में वो लोग फायर कर रहा है अभी, नफ नदी उसको टेक ओवर कर लिया. तो क्या है ना, आपको मैंने पहले कहा जो, कैन यू जस्ट पोस्ट इट? हाँ मैं पोस्ट पोस्ट, कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ क्या किस नहीं पोस्ट करूंगा, कोई बात नहीं. ओके.
I can also post it. तो मेरे एक मैं क्या इसको क्या कहता है एक आइडिया है मेरे पास जो आई एम थिंकिंग दैट हमारा एशिया में एक ओरिजिनल क्या कहते हैं उसको जेम्स बॉन्ड है ओरिजिनल जेम्स बॉन्ड 007 उसका नाम है अजित डोभाल तो अजित डोभाल साहब है हाँ एशिया का जेम्स बॉन्ड तो उसके ऊपर मैं बहुत फेथ रखता हूँ तो वो इस तरह बांग्लादेश का जो पाकिस्तान बांग्लादेश वो जो अभी जो मिलिटेंट गवर्नमेंट यूनुस ये सब एक साथ अजित डोभाल साहब एक साथ एक पास कोई बात नहीं ये लोग जो चिंता कर रहा है ना अभी वो कुछ नहीं होगा तो मेरा कॉन्फिडेंस है वो कुछ नहीं होगा क्योंकि इसका दिमाग में कुछ नहीं है इसका दिमाग में गोबर भर चुका है वो इस्लाम के नाम पे धंधा कर सकता करता है वो कैसे जो पीस में नोबेल प्राइज पाया मैं कंफ्यूज हूँ यूनुस कैसे नोबेल पाया है पीस पर सो कंफ्यूज बिकॉज वो तो पीस किल करता है वो पीस कैसे पीस पे ऊपर कैसे वो नोबेल पाया मेरा दिमाग में नहीं आता है उसका आइडिया है बांग्लादेश का थ्रो पाकिस्तान 1971 के रिवर्स लेगा इंडिया पर ऊपर इंडिया का हमला करेगा जो मुंबई में हुआ है ना मैं पहले से कह रहा था मुंबई पंजाब में जो हुआ है वैसा वैसे भी कुछ इंसिडेंट वहां पर होगा एक और सीरियल बोमा हमला होगा जो बांग्लादेश में कहाँ हुआ पे था भारत में कहाँ पे होगा? भारत में वो चाह रहा है वो नहीं होगा कारण ना टेररिस्ट धरा पड़ रहा है ना एवरी डे जो उसको क्या कहता है जसीम जो मुद्दा जो जिसको रिलीज किया है वो तो अलकायदा का एक वाहिनी है बांग्लादेश पर उसका नाम मैं भूल गया अभी हम्म तो अंसरुल्लाह बांग्ला टीम अच्छा हाँ अंसरुल्लाह बांग्ला टीम तो उसका ये जो टेररिस्ट बांग्लादेश में जो शेख हसीना सरकार उसको अरेस्ट करके जेल खाना में भेज दिया था अगर ऐसा हुआ अगर ऐसा हुआ अगर ऐसा हुआ तो there will be direct consequence for डेफिनेटली Yunus. डेफिनेटली डेफिनेटली वो जो क्या है He ना dare not do that. 1971 में छोड़ दिया था देखो अभी नहीं छोड़ेगा एक अभी सेकेंड उसका एक पिछोरा में सर एक धोखा सेकेंड देगा सब सर एक सेकेंड अगर कुछ भी हुआ है ना कुछ भी हुआ तो it will be directly used by India to implicate Yunus in a court of law. डेफिनेटली कम सीधी सी बात है डेफिनेटली उसको अगर नहीं करेंगे हम नहीं लोग भी करेंगे वेट कर तो रहे हैं ना अभी जो सर मोदी जी हम डिक्लेयर छोड़ेंगे करो नहीं अभी इंटरनेशनल के बाद में इंटरनेशनल में भी भारत पड़ रहा है ना मोदी जी डिक्लेयर करो जो ये जो यूनुस गवर्नमेंट है इलीगल है तुम लोग ये सब लोग नहीं करेंगे आ, नहीं करेंगे बाद में वो इसीलिए करेगा ना वो इसीलिए से यू नीड टू अंडरस्टैंड सब कुछ हम पाकिस्तान तो है नहीं ना वो करेगा और अभी अभी अब नहीं है वो करेगा कब सर एक सेकेंड जब सर एक सेकेंड या इंडिया वर्क्स इन अ वेरी डिफरेंट वे ठीक है इंडिया में इफ यू नोटिस मोदी एंड ममता आर two extremes of politics in domestic politics. Mamata Banerjee has not spoken a single word against the Modi government when it comes to Bangladesh. Why? बाकी सब बात की बात है ममता एंड शेख हसीना आर फ्रेंड्स यार वो तो थोड़ी छोड़ेगी सो इट्स नॉट वेरी डायरेक्ट आई मीन सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होने वाला है यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस तो बहुत कुछ चीजें अभी भी इट्स नॉट आउट इन द ओपन सो लेट्स सी हाउ दिस comes out so let me अच्छा by the way there's one handle called polydamas मैं आपको एक बात करके मेरा माइक मैं ऑफ कर रहा हूँ हाँ अभी से 20 दिन में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आके डायरेक्टली ट्रम्प कहेगा मोदी जी आप बांग्लादेश को संभलाओ इसके पहले बांग्लादेश में पाकिस्तान घुस के भारत में यदि कुछ किया ना तो डायरेक्टली इंडिया विल टेक एक्शन अगेंस्ट बांग्लादेश और पाकिस्तान बोथ सर पाकिस्तान नहीं आएगा कहाँ बांग्लादेश पर में नहीं आएगा सर आपको मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान नहीं आएगा
कहाँ पर नहीं आएगा? पाकिस्तान तो बांग्लादेश में आ गया है ना। नहीं आएगा, वो तो क्यों बांग्लादेश जाएगा? पर वो गोली वो फायर करेगा बांग्लादेश के घर के ऊपर। सर जो नहीं ब्लेम आएगा। आएगा बांग्लादेश पे आएगा। सर मैं आपको और कुछ बता रहा हूँ। सर ऐसा है, पाकिस्तान विल नॉट कम टू बांग्लादेश, एंड I'll tell you why also. Uh, See, Pakistan is very busy with Afghans. वो एक अभी तरफ शुरू है, हाँ अभी अभी शुरू है, शुरू हो रहा है। They'll be अभी busy शुरू है। there. They'll be busy there. वो इधर नहीं आएंगे। हाँ कैसे अच्छा। आएगा? अब मैं तो पहले ही कहा हाँ। था ना, जो एक। खेल हो रहा है ना अभी, ये हम्म। खेल तो मेरा जो जेम्स बॉन्ड है ना 007 वो कर रहा है हम्म। ना, वो कैसे यहाँ पर आएगा? हाँ। मैं तो आपको हाँ। कहा है, पहले ही कह दिया था, एशिया में एक, मैं सर को बहुत, आई डोंट मीट विथ हिम पर्सनली। वो जो क्या है ना, अगस्त में जो कहानी हुआ है, अगस्त के बाद इंटरनेशनली सबके साथ, आपको लोग सबके साथ बात करने के बाद मेरे जो परसेप्शन क्रिएट हुआ है, जे भाई ही इज द ओनली वन। हम्म। चलो अभी देखते हैं। सर अभी 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 देयर इज वन हैंडल व्हिच इज एक्चुअली वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम लोग या दोबारा प्लीज बात प्लीज प्लीज, करेंगे। मैं ऑफ कर रहा हूँ, थैंक यू। हाँ हाँ, जय म्यूट पे बांग्ला। जाइए। आई विल कॉल यू अगेन। या जय बांग्ला। जब। हाँ सर। पॉलिडमस। सर आप म्यूट में हैं। Yeah, hello. यस सर। Yeah, I have been listening to the conversation from a long time, हम्म। and I have a certain points to make because what I found that the speakers Arifin was talking about, he was talking a lot of genuine things, but I think the picture is a bit vague when he talks about the ground realities that are happening on the ground. To clarify this, I would like to create two different pictures. One which has already happened and everybody knows that, and the exact replica of what is happening right now, so that we are better able to understand कि भविष्य में क्या होने वाला है. Right. So what exactly happened was, wherever you find terrorism, the terrorism was exactly invented by the Americans. But wherever you find terrorism, the first thing that you have to look back into is the funding channels. कि जहाँ भी टेरर दिखेगा उसके पीछे you will find पैसा कहाँ से आ रहा है, वो समझना जरूरी है. सो दी अफगानिस्तान के अंदर भी 78 के अंदर देयर वाज अ coup, द सॉर रेवोल्यूशन, एंड उसके बाद में अफगानिस्तान टर्न्ड इनटू अ टेरर फैक्ट्री, mostly because of its poppy cultivation. This point earlier came in the discussion as well. अब अफगानिस्तान में आने का जो कारण था, दैट वाज टू ब्रेक द शिया एक्सेस that used to run from Iran till Turkey, because the Shias used to control the majority of the oil, and to get control of the oil it was important to have a footstep inside the Middle East, and Afghanistan was one of the most important areas, and since it was pretty far from the Russians to control, or USSR was also on the verge of breaking down, so it was a golden opportunity for the Americans to come in, and the Americans were the first ones who actually glorified the Mujahideens initially. और जब काम निकल गया, then the terror factory and the terrorism and war against terrorism things started. अब उस टाइम पे जनरल हामिद गुल used the opportunity to set up terror groups inside the Khyber area, particularly in Waziristan. South was the primitive one, South Waziristan. उस टाइम पे when Al Qaeda was set up at that time, so funding used to come from Haqqanis to invest in the groups, and it was the entire drug money that was coming in, or poppy cultivation was inside Afghanistan. Haqqanis used to control that. The money was generated, and it became a self-funded factory, which Pakistan has successfully run in Kashmir for over 25 to 30 years now. Now, this is the backdrop of everything. Now, let us come to the exact replica of what is happening today. आज की डेट में मिडल ईस्ट में तेल खत्म हो गया है, एंड इवन साउदीज आर टर्निंग टुवर्ड्स टूरिज्म, बिकॉज next 10 to 15 years the entire oil of Middle East will eventually dry up, and or it will at least not be one of the major sources of income.
So the next pool of oil is either in the Greenland or it's in the Bay of Bengal, right? तो वहां से आता है पहला कंट्रोल. नंबर टू, वहां पे शिया एक्सेस का प्रॉब्लम था बिकॉज शियाज यूज टू कंट्रोल एंड बे ऑफ बंगाल इज कंट्रोल्ड मोस्टली बाय इंडिया. यहाँ दूसरा आता है एंगल. तीसरा एंगल आता है when terror factories were established in Khyber and Waziristan, funded through Poppy, controlled by Haqqanis. यहाँ पे वो एंगल आता है that very soon Pakistanis will try to establish terror groups in north of Bangladesh, and it will be funded through poppy cultivation inside northeast, which is largely being tried to be controlled by cookies right now. Hmm. So the same drug cycle to invest into the same industry, and the same model of the same model that can be replicated inside Bangladesh as well. So as Mr. Arifin was saying, ki RDX has come and weapons have come. So possibly they have been pushed at the right places to start terror related training camps or something like that. I do not know whether there are any training camps right now, but hopefully in the near future we may come across with news where Jamatis will be organizing the camps, just like the Jamatis were doing the same in Pakistan, and the funds can come through the poppy cultivation in the northeastern states of India. The very fortunate thing till now is that Nagaland is still very peaceful, but for how long, it is a point of concern. But if somehow the funding channels can be stopped, then we have an idea, because पाकिस्तान के अंदर 25 साल के अंदर चाहे इंडिया ने किया हो या किसी ने भी किया हो, everybody was trying to target the terror camps and the terror factories. तो it is like they are like रक्त बीज, वो बार बार निकलते रहेंगे until unless the funding pipeline is cut down. So agar, if Haqqanis could have been stopped 25 years back in Afghanistan, Pakistan border areas, then there would have been no terrorism inside Kashmir till the next 25 years. So similarly, if cookies can be controlled in that area and if Jamatis can be managed in northern Bangladesh, then Bangladesh can be saved. The idea is that what Bangladeshis are not able to understand right now is that it is not only a battle for democracy. If you see from Nepal, India, Bangladesh, and even Myanmar also, these countries are not separated because of religious beliefs. It is the same culture alongside the entire Ganga, which is flowing. And the if you start looking at the world maps based on cultural identities, we will have different types of geographies around the world. जिसके अंदर at least Nepal, India, Bangladesh comes in the same category. Same beliefs, same type of food, same type of weather, same type of language, same type of interest in music and living styles, right? अब यहाँ पे जो डि- जो लड़ाई है बांग्लादेश की, वो सर एक अपनी एक आइडेंट. सर सर एक स्लाइड करेक्शन. एनीथिंग ईस्ट ऑफ सिंध आल्सो इन पाकिस्तान ईस्ट ऑफ सिंध आल्सो स्टक बाय आवर कल्चर, है ना? Exactly, the entire Pakistan is stuck by our culture. If you just go towards Peshawar, वहां से चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं. Right. I will Yeah. particularly talk about a village called Landi Kotal that is in the Aliabad area, just inside Pakistan, but at the Pakistan-Afghanistan border. Till Mhm. there, the entire culture and lifestyle is same. So, Mhm. एक example के तौर पे अगर if I go ahead and say that इंडिया के अंदर किसी को भी पूछो फ्री टाइम में क्या करेगा, तो आराम से टांग पे टांग रख के बैठेगा, कुछ गाना वाना सुनेगा, खाना खाएगा. The same is the like-mindedness in Bangladesh, same is in Nepal, same is in Pakistan. Mhm. Right. So this is coming from inside. This is the culture and the distinct identity that we all share together. Mhm. यहाँ पे जो होने की कोशिश हो रही है, if Bangladeshis have to save Bangladesh, they will actually, this is the moment and this is the time that they will have to recalibrate, and they will have to brutally hit down on the externally funded elements. Otherwise, Bangladesh will be lost forever. At least you don't have more than an year or two, in my personal opinion, because once the terror factories start. क्योंकि अफगानिस्तान में क्या हुआ था, अफगानिस्तान में before 78, कारपेंट इंडस्ट्री was one of the biggest industries that used to generate income. Education भी थी, सब कुछ था.
पर जब एक बार टेरर फैक्ट्री चालू हो गया, इट हैज नाउ बीन 3 generations। तो आज का जो जनरेशन है उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम इज बुलेट्स एंड वेपन्स। उसको कारपेट बनाना नहीं आता है, उसने एजुकेशन तो लिया ही नहीं कभी, और अपना बाप दादा का जो ओरिजिनल काम था वो भूल गया सब कुछ। अब बांग्लादेश में लकीली अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, बट वंस एक बार वो कहते हैं खून मुंह लग गया आपके और आपको उस पैसे की आदत पड़ गई, उसके बाद देन एंटायर कल्चर एंड डेमोग्राफी बिगिंस changing, and eventually Bangladesh will never progress। वो it will eventually land up in the same location, जैसे कि अफगानिस्तान is a battle testing ground for most of the foreign countries। जिसको भी बॉम्ब टेस्ट करना होता है वहां जाके फेंक के आ जाता है। Eventually Bangladesh can also have the same fate। So possibly this is one of the last opportunities that is left when you will have to stand up again, and you will have to ensure politically that if we just get hold and the grip of the country, we are also able to safeguard it from external influences। Right. So I was actually telling earlier that you should be happy that these radicals are talking in Bangla and not Urdu, because the moment Urdu comes in, it's one step before terrorism steps in. Not So only that, there is a problem on that also. The original language of Bangladesh is Bengali, definitely, exactly, but original language of Pakistan is also not Urdu. It is Punjabi। Urdu is So the, yeah. there is a conflict of ideas। If you ask a Mm. Pakistani to start speaking in Urdu, एक line बोलने के बाद he will eventually come to MC Punjabi. and BC, because that is the original language। So there is a conflict of language and ideas and everything inside Pakistan। This is the reason they have not been able to stabilize, क्योंकि एक आदमी individually mentally stable नहीं है, family stable नहीं है, शहर stable नहीं है, पूरा city stable नहीं है, पूरा state stable नहीं है, पूरा country stable नहीं है। Hmm. Actually, I was actually surprised that in Punjab Assembly, you can't speak Punjabi. You have to speak in Urdu. Pakistan Punjab की बात कर रहा हूँ. This is exactly what they tried to force on Bangladesh as well, Yeah, because Urdu is originally from UP। UP, This is Deoband, from yeah, where it comes from। Lucknow, Awadh, yeah. So, Bangladesh still stands a chance if, It has a lot of chances। The only I think that saving Bangladesh can be one of the most easiest of the tasks, considering what is happening around the world। hmm, There are coups back to back which are happening around the world, जैसे कि Arab Spring हुआ था, it has never stopped। hmm, कल ही there is a riots, coup riots in Cairo as well। hmm, Belarus is going in a different direction। hmm, We are already in a state of war। If you see that how many wars are presently going on in the world, so it is not only Russia Ukraine, it is not only Syria and Israel। We have conflict zones between China and Taiwan, we have conflict zones between North Korea, South Korea, we have conflict zones going on इनसाइड म्यांमार में तो बहुत एक्टिव है, हमारे Armenia, बगल में ही Azerbaijan, चल and रहा है। Pakistan yesterday bombed into Afghanistan. Afghanistan, and Afghanistan will soon going to is soon going to retaliate। अफ्रीका के अंदर तो हालत ही बहुत ज्यादा खराब है। और if you see around the world, we are already in a state of war। and इसके अंदर see, I it is my personal belief that whenever you have to achieve something big, you have to sacrifice। And I think that goddess Dhakeshwari is actually looking for blood sacrifice right now in Bangladesh। Right, right. And okay, I will not talk about it right now. What I wanted to say, कुछ आया था बोलने के लिए, but then I'll hold. I'll just hold. And one more thing, sir. You have seen the pictures and videos of this new force in Bangladesh. Are they Pakistani police or बांग्लादेश में कोई ऐसा entity भी है? I read somebody was saying that it is a critical response team, and it was trained by US and in Jordan। So technically, Pakistan police has also received their trainings from the same area। What I Ah, see that the dresses are similar. The vehicles that they are using is a Toyota Hilux truck, hmm, similarly to the similar ones which were used by ISIS at one point of time in Syria। hmm, But probably the vehicle is a good one to do all the hard work। hmm, So, but what I see that
if you see both the pictures, this, if you see how they are operating inside Pakistan and inside Bangladesh police, दोनों के बीच में, Mhm. it is more of a deception work done by ISI right now to show to the entire world that Pakistan can be replicated and East Pakistan is still alive. So as a Indian, if you see कि बांग्लादेश का पुलिस कैसा दिखता है और पाकिस्तान का पुलिस ऐसा दिखता है, so a lot of people will start somewhere thinking in their minds that both are similar. So this is a acceptance propaganda that is being run, that has been recently started by ISI, but वो चलेगा कितना, I am not sure. Interesting. Thanks, sir. Thanks for your inputs. If you want, and if you want to add anything else, you can, or else I'll give it to Sir Shivam. Yep. No, I don't want to add anything. Thank you. Okay, thanks. Shivam? शिवम भाई वेलकम. माइक म्यूट में है. हाँ हाँ ठीक है. मैं तो फोन ही करने वाला था. हेलो. हेलो. शिवम भाई म्यूट में है. Just give me 1 minute. He'll join. So मोटा मोटा ये हो रहा है कि the happenings in Bangladesh is not actually limited to Bangladesh itself, and there will be a lot of other issues popping up for Bangladesh and due to Bangladesh uh, regime uh, in Dhaka currently, and it will cause more problems for us, and that is one of the reasons why I mean, I want, and sorry to say, but Indian media is not doing justice. They are talking only about Dhaka happenings and maybe to some extent Yunus. But I mean, that's the reason why we wanted to make certain things public, and let's see how this goes. Shivam bhai, mute. Over to you. हेलो, Yeah, एम आई go ऑडिबल? ahead. Yeah, now. हाँ जी. हेलो एवरीवन. मुझे बोलिए सर. मतलब आई डिडंट हियर द होल, आपका भी मैंने सुना नहीं है ये. तो व्हाट आई फील इज मतलब बांग्लादेश के साथ में वही हो रहा है जो उस टाइम पे ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के साथ में हुआ था. दोनों साइड से, वो एक साइड से जो बर्मा वाला साइड है वहां से भी कुछ कुछ चल रहा है. अब तो धीरे धीरे करके मुझे लगता है हमारे इंडिया से भी उनको राउंड अप करके निकालने की प्रोसेस भी शुरू हो गया है. बिकॉज आई वाज हियरिंग द न्यूज ऑफ सेंसस. हमारा भी सेंसस कहाँ का? शायद, Sorry, which census? जो हमारा सेंसस होना ड्यू है ना, कोविड की वजह से नहीं हो लास्ट पाया था. टाइम नहीं हुआ था. हाँ. हाँ, तो वो उसके सेंसस का भी शायद प्रोसेस 2025 में शुरू हो जाएगा. और उससे पहले ही होम मिनिस्ट्री ने कुछ ऑर्डर्स इश्यू किए हैं. जैसे आप देख रहे हो, अगर देखो तो देवेंद्र फडणवीस ने कुछ ऑर्डर्स इश्यू करे हैं महाराष्ट्र में फॉर द आइडेंटिफिकेशन, कि जो लोग जो हमारे इंडियन सिटीजन्स नहीं है और वो फॉर वट एवर रीजन रह रहे हैं, पहले उनको आइडेंटिफाई करो. एंड देन दे ऑल्सो स्टार्टेड आई गेस डिटेंशन सेंटर, उस टाइप का भी उन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया है. सो सेम अभी दिल्ली में आप देखो, दिल्ली में भी पिछले 15-20 दिन में देखो कि किस तरह से केजरीवाल चिल्लाने लगा है उस इश्यू पे. मतलब जो व्यक्ति रोहिंग्यास को, बांग्लादेशियों को, बाकी सबको बसा बसा के उनके वोट बनवा रहा था, अभी आज जब उनके वोट कट रहे हैं, तो जब उसने देख लिया कि यार इनके वोट कट गए हैं, तो फिर वो सिंपैथी लेने के लिए अब वो केंद्र सरकार पे अटैक कर रहा है. so that कि somehow they come under pressure and then they start rolling back the जो प्रोसेस शुरू किया है. बिकॉज दिल्ली पुलिस ने भी अपना वो आइडेंटिफिकेशन वाला प्रोसेस शुरू कर दिया है. सो
कुछ तो कई सारी चीजें चल रही है। उसके साथ साथ जैसे जो हमारे जो बॉर्डर्स है, अभी आप शायद पता नहीं आपने वीडियोस देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, बीएसएफ ने भी थोड़ा स्ट्रिक्टली अब इनसे डील करना शुरू कर दिया है। राइट राइट अर्लियर बीएसएफ वाज लिटिल जेंटल। इस बार तो अभी ये है कि या तो सीधा गाली दे रहे हैं, या तो तुम दूर चले जाओ, नहीं तो सीधा गोली मारी जाएगी तुमको। एकदम क्लियर कर रहे हैं। तो जो हमारे बॉर्डर की जो इवन जो फेंसिंग वाला जो पार्ट है, वो भी स्पीड पे चल रहा है, चाहे वो उधर म्यांमार वाला हो, क्योंकि वहां से भी वो चल रहा है, हमारा मणिपुर वाले चल रहा है। और इसके साथ साथ जो मतलब पता नहीं, आई डोंट नो आप लोगों ने डिस्कस किया है या नहीं किया है, कल जो 2 अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, हाँ मिजोरम, गवर्नर ऑफ मिजोरम एंड गवर्नर ऑफ मणिपुर, the ex home secretary and the ex chief of army staff and the union minister also। तो वो सारा का सारा मतलब सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है। अभी देखिए ये लोग आगे क्या करते हैं। जैसे यू नो आई वाज यार टॉकिंग टू आर्मी समवन, आ गया, आईएफएस आ गया, आई मीन आईएएस आ गया, तो आईएएस आ एक गया, आईपीएस भी डाल होम दो। सेक्रेटरी था। नहीं, आईपीएस भी डाल दो। नहीं, आईपीएस इज ऑलरेडी देयर, नो? हम्म यू ना, यू हैव जो यू हैव नागालैंड ऑल में द नागालैंड में फॉर्मर नागालैंड गवर्नर इज एक्चुअली करंट तमिलनाडु गवर्नर, उनको भी भेज दो। यस। ही वाज एक्स-आईबी आल्सो। नहीं वो आपके वो तो फिर उधर भी चाहिए ना आपके, उनको भी तो कंट्रोल करना है। वो वहां पे थोड़ा जो डीएमके का थोड़ा ज्यादा ही है, वो इनसे भी थोड़ा खतरनाक है वो। एटलीस्ट दे कैन बी डेल्ट विद फोर्स। तो अभी वो चल रहा है। और अभी इन जनरल जो मेरा मतलब पता नहीं आप लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, मतलब इन जनरल जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जो बांग्लादेशी लोगों के प्रति जो थोड़ी बहुत भी सिंपैथी लोगों में बची हुई थी, चाहे भले ही वो 5,000 की जगह 3,000 की मेड मिलने वाली बात हो, वो सिंपैथी भी ना धीरे धीरे जाना शुरू हो गई है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट, जैसे कई सारे लोग बोलते हैं कि यार अगर इस टाइम पे हमने बांग्लादेश में कुछ किया, कोई भी अगर हमने हार्ड एक्शन लिया, तो उसके रिप्रिकॉशंस बहुत सारे होंगे। कि 1971 में जैसे था कि मुक्ति बाहिनी सपोर्ट कर रही थी, लोकल बंगाली सपोर्ट कर रहे थे, बंगाली एजेंट वो, चाहे वो बांग्लादेश में रह रहे थे, और हिंदूज भी उस टाइम पे थे, ठीक ठाक सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो इंडियन आर्मी ने अपना हमारा जो ऑपरेशन था इजी हो गया था। लेकिन अभी इस टाइम पे मेजोरिटी ऑफ देम जो एटलीस्ट दिख रहा है, जो 30-40% जो जनता है, जो वो एकदम एंटी इंडिया हो चुकी है, तो उस टाइम पे बांग्लादेशीज के लिए इंडिया में कोई एंटी बांग्लादेशी सेंटीमेंट नहीं था। लेकिन इस टाइम पे इनफ एंटी बांग्लादेशी सेंटीमेंट ग्रो कर रहा है। दो चीजें चेंज मतलब हुई जो कि है। हमें दो चीजें चेंज हुई है शिवम इधर, लाइक व्हेन जी कंपेयर टू 1971। फर्स्ट थिंग, लाइक यू सेड, राइट वहां पे एज इन हमारे साइड पे सिंपैथी कम हो गई है। इट्स ट्रू बिकॉज वो जो इलीगल पीपल की वजह से बहुत नुकसान हुआ है, एंड स्पेशली इन अर्बन सेंटर्स and certain rural areas of North India and Bengal. But राइट the other reason is also that uh, a kind of a threat perception has grown in Indians, among Indians, that ये लोग हमारे घर में घुस के कुछ करने वाले हैं। ये राइट किस हद तक, see, at some point it is also like economic मजबूरी, ये वो, I mean you can have various reasons, but then आया तो लीगल ना, वो वाली बात पे अटकी। And if you are a if you have, दूसरा if you would have come legally, I mean कोई नहीं पूछने वाला आपको, नहीं, वो दूसरा नहीं है। ये भी आप समझो ना कि सी इंडिया 1971 का नहीं है ना, आप समझो। इंडिया 1970 का नहीं है, बट इंडिया पहले the other thing nobody वही can बता रहा था। enter the Indian Ocean without our help, without राइट our due approval। राइट। तो दूसरी बात ये भी है ना शिवम कि लास्ट टाइम व्हेन दे केम, a lot of refugees had to
come much before the actual first wave started. First wave से पहले ही आना चालू हो गई थी, and those people are still part of Tripura. Brew refugees हो या फिर कोई और हो. I mean, there are a lot of other people also who came, not just uh, uh, I mean, due to the happenings in 1971 exactly. So वो भी हो गया था. And राइट इसका रीजन क्या हुआ? I mean, अब क्या हो गया? You can't go into Bangladesh though people are supportive of you. You can't go and do things which you did last time. But that is as of today. 6 महीने हो गए. Already we are seeing Joy Bangla being written. It's kind of a movement right now, if you haven't noticed. एक movement जैसे चालू हो गया resistance जैसा, that people are putting graffiti on walls. और उसके ऊपर भी लोग अरेस्ट कर रहे हैं. राइट इनका दिमाग ही नहीं है. If this is going to see उस वो जो कोक कैन को कितना प्रेशर करोगे तो उतना फटेगा. It's going to happen at some point, नहीं and it व्हेन will आई happen. से व्हेन आई से मतलब मैं आपको इसमें एक लाइटर नोट पे भी ऐड कर रहा हूँ. व्हेन आई से द मुस्लिम्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट आर फादर फाइंडिंग कॉम, देयर इज अ रीजन. सी अरब्स इनको कल्चर अपना से नहीं अलग हो गए मानते. ना शिवम. See, टर्क्स, that's what I was हाँ, saying. तो अब आप So you can सोचो follow सी any अब religion. इसमें That यस अभी 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 जैसे एक आपका होता है ना कि भाई एक आपका ना कुछ पुश्तैनी आपका कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है, जैसे हम सबका है, हम सब अपना हम्म ओरिजिन ट्रैक कर सकते हैं. इनके साथ वो भी नहीं है. अच्छा, पाकिस्तानी मुस्लिम्स को जब आप देखते हो बांग्लादेशी मुस्लिम्स से कंपेयर करते हो, देन यू सी कि बांग्लादेशी मुस्लिम्स कितने ज्यादा इविल है. जब आप इवन पाकिस्तानी आर ऑलरेडी इविल, हम्म आप उनको भी अगर बांग्लादेशी से कंपेयर करते हो, देन यू फाइंड आउट कि यार ये तो इनसे भी ज्यादा हरामजादे हैं. ना. See, प्रॉब्लम ये है कि all this perception that you're talking about ना शिवम, हम्म, ये हम्म, this is an average Indian's perception because जो हमने एनकाउंटर किया, जो हमने जो हमने जो फेस किया इंडिया में, एंड मोस्ट ऑफ देम आर 99% वी फेस्ड बांग्लादेशीज हु आर इलीगल्स. और उनका तो कुछ नहीं जा रहा यार. दे आर नॉट उनका बेसिकली क्या है ना, उनका फिक्स्ड डिपॉजिट बांग्लादेश में है, इंटरेस्ट इधर से खा रहे हैं, उधर का इंटरेस्ट उनका खुद हम्म, का है, बट दे आर हम्म, ईटिंग फ्रॉम हियर आल्सो. तो दे हैड लिटरली हम्म, कंटेम्प्ट फॉर अस द इलीगल्स. जो बंदा, हम्म, आई नो हम्म, पीपल who have come in legally from Bangladesh, but they have utmost हम्म. respect for India also. ये दोनों तरफ की बात है. But the illegals who have come, बड़े ही मतलब वो कितने ही रेडिकलाइज्ड आदमी हो सकता है. आई हैव नॉट सीन, आई मीन बहुत बड़ा रेडिकलाइज्ड आदमी हो सकता है इलीगल्स. ये इलीगल की वजह से हम लोग Yes, का परसेप्शन even ही खराब हो गया. उनका, आई मीन दे हैव लिटरली वेरी बैड कंटेम्प्ट फॉर अस एज अ कंट्री. नहीं नहीं वो चीज भी है. जैसे इसमें क्या है ना, इसमें एक जो ऑर्गेनाइजेशन है जो पैन इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश में है, दैट इज जमाते इस्लामी. राइट. जमाते इस्लामी का जो रोल है ना, कि जो हमने देखिए मोटा मोटा पिछले 10-11 साल में जो इनका स्लीपर सेल्स था उस पे मोटा मोटा कंट्रोल पा लिया. हम्म राइट. सो अब क्या हुआ है ना कि दीज इलीगल्स आर ट्राइंग टू फिल दोज गैप्स हम्म फॉर देम. हम्म वो प्रॉब्लम हो रहा है. जब कई कई बार होता है कि चलिए आप ये वाला स्टेप्स पॉलिटिकल नहीं उठाते हैं या हम्म वोट के रीजन से नहीं उठाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द सिक्योरिटी ना, फिर आपको दैट यू हम्म यू नो यू आर कंपेल्ड टू डू दैट. हम्म सो कई सारे जब केसेस हुए हैं तो उसमें जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, दे आर, आप समझो कि अगर मतलब ऑन एन एवरेज अगर 10 रोहिंग्यास या बांग्लादेशी मुस्लिम्स आ रहे हैं तो उनमें से 6 से 7 जो है वो क्रिमिनल्स हैं. हम्म सो एग्रीड. यू सी द अमाउंट ऑफ जो इवन इवन जो 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 जमात की, अच्छा इनका क्या हो रहा है, एक एक पैटर्न जो इमर्ज हो रहा है, दे आर जमात ने अपने वो एस्टेब्लिश किए हुए हैं. हर हम्म एक स्टेट में आप देखो जमात के अपने अपने, जमात इस्लामी के अपने अपने सेंटर्स इनके बने हुए हैं. ये लोग इनको जिस तरह से असिस्ट कर रहे हैं,
दैट इज वेरी स्कैरी। सी अभी क्रैकडाउन उन पे होना शुरू हो गया है, कई सारा चीज हुआ है, लेकिन वो जिस तरह का ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम क्रिमिनल नेक्सस जिस टाइप का ये चला रहे थे, और उसके लिए जो इनको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए थे, हम्म जो ये पूरा चलाते थे ना पहले 90s में, चाहे मुंबई को कंट्रोल करना हो, जिसको मन कर रहा है उसको गोली मार दी, इसको काट दिया, इसको ये कर दिया। तो वो जो नेक्सस है, उसके लिए जो हम्म ह्यूमन रिसोर्स का जो सप्लाई है, जो हम्म क्रिमिनल्स का सप्लाई है, वो वहां से पूरा आ रहा हम्म है। एंड दे आर, आई गेस मैं सुन रहा था कि उनको ट्रेन किया जा रहा है। राइट। सो दे आर, अभी वो और पाकिस्तानी आर्मी ऑलमोस्ट सेम जगह से ट्रेन होके आ रहे हैं। हम्म सी इवन अभी अभी इवन दे अभी हैव द I'll अंडरस्टैंडिंग ऑफ द I'll go back to this point। राइट। आपने जो बोला ना, दिल्ली में केजरीवाल बहुत परेशान है। I mean, he's shouting. He is not shouting because of votes. He is shouting because कल को यस कोई प्रोटेस्ट हुआ तो सब ये करने के लिए आदमी नहीं है, प्रोटेस्ट करने के लिए आदमी नहीं यस है। यस दैट एग्जैक्टली। इज द मेन रीजन। यार वो सरकार में रहे ना रहे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। The idea of Pakistan जैसा, the idea of Kejriwal is whether you are in power or not, you can still create chaos। तो वो जो chaos का जो यस फैक्टर है, that is fading away। ये यहाँ से बहुत परेशान है लोग। इट इज नॉट कि see, जो पाकिस्तान से लीगली आया है रेफ्यूजी बन के, उसको तो आप बिजली नहीं दे रहे हो, आप ये गेटो में रहने के लिए बोल रहे हो, तो लोग देखते हैं ना। नाउ दोस आई मीन दिस इलीगल्स वर केप्ट इन सीआरपीएफ कैंप, व्हाट इज दैट, पीतमपुरा के पास। वो डीडीए फ्लैट्स जो नहीं बिका था वहां पे, दैट्स टुवर्ड्स जींद जाती है ना वो रोड, वहां पे। तो these guys are like very crazy and that is the reason why केजरीवाल is परेशान। इट इज नॉट कि इलेक्शन वोट वो सब नहीं है। सो या वोट यू। हाँ जी मैम। जी। सॉरी, मैं एक कॉल आ गया था, क्या बोले थे आप? सॉरी, आई डिडंट हियर। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि मतलब केजरीवाल परेशान, रेफ्यूजीज मतलब प्रोटेस्ट करने के लिए लोग नहीं मिलेंगे, वो उसका चक्कर है, बाकी कुछ नहीं। नहीं, इनका इनका जो जैसे जी, जो टिपिकल, अब तो खैर हर जगह आपको पता चल रहा है, जैसे राहुल गांधी जो है, आपका हाफ, जैसे हाफ टी शर्ट में घूमता है वो, you see, दिल्ली की सर्दी में हाफ टी शर्ट में घूमना। हमारे यहाँ तो जैसे कहीं भी गांव और इधर इस साइड में लोग बोलते हैं भाई क्या ये नंगा आ रहा है यहाँ से, यू नो। बट वो जो इमरान खान टाइप ऑफ पॉलिटिक्स जो है, यू नो, हम्म चार्म करता है, ये थोड़ा डिफरेंट है, यू नो, उस टाइप से करके जो ये ट्राई कर रहे हैं, उसके लिए जो इनका जो ग्राउंड फोर्स था, उस पे पूरा हमला वो हुआ है। हाँ यू नो कि राइट। जो शाहीन बाग करने का जो कैपेसिटी था ना, वो सिर्फ दिल्ली में रह के दिल्ली के लोग को करना बड़ा मुश्किल था, सीए हम्म के टाइम पे जो हुआ था। हम्म लेकिन दिल्ली में रह के इतने सारे, इवन आप देखो ना अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, दिल्ली पुलिस को कई सारे लोग तो समझ ही नहीं आ रहे ये तो हम ये कहाँ से आ गई, उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, हम्म यू सी। हम्म तो वो वाला प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है कि इनका जो जिस टाइप का स्ट्रीट फोर्स है, हम्म जहां से ये दंगा करके बवाल करके हर चीज में बच जाते थे, उस पे हम्म अब एजेंसीज डायरेक्ट अटैक कर रही हैं। हम्म आप यूपी में देखो, जैसे इवन इवन इन संभल, मतलब जो जिस टाइप का इन्होंने करने का ट्राई किया, लेकिन जैसे ही पुलिस का डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स आया, हम्म तो वैसे ही ये लोग अपना बैक ऑफ कर गए। नहीं तो ये क्या है, ये कई सारे वेव्स में, इवन यूपी में पहले भी कई सारी वेव्स में राइड करते थे। हम्म इवन जब योगी जी के आने के बाद भी इनका ये रहता था, आज कर लिया चलो अच्छा ठीक है, अभी 2 दिन के बाद फिर ये तीसरे दिन शुरू हो जाते थे। लेकिन पुलिस हम्म ने वो क्रैक कर लिया इनके बोर्ड, बेटा आप तो देख हम्म लो तुम, हम आपको एक भी हम्म दिन खुला नहीं देंगे कि आप कुछ भी कर पाओ इस टाइप का। तो वो हम्म वाला जो फोर्स है, समवेयर मुझे लगता है कि जो जमाते मतलब बहुत छोटे लेवल पे ही हुआ है, बट समवेयर की जो जमाते इस्लामी जो प्रोमिनेंट रोल में आ गया है ये पूरे मोबिलाइजेशन के लिए,
तो जमात वो थोड़ा प्रोमिनेंट मतलब में ज्यादा जम प्रॉब्लमेटिक हो। right, right, right. Hey, Shiv, just to add to your point, Jamaat has come to prominence since Easter bombings in Sri Lanka. तो तब से जमात रेडार में है एंड मच बिफोर ऑल्सो। जमात एक ऐसा संगठन है विच इज पैन, it extends from uh, Arabian Sea to Bay of Bengal. तो इरवाड़ी फ्रॉम यस। रिवर टू अरेबियन सी बोल सकते हैं, फ्रॉम रिवर टू सी आप भी। तो इट्स सेम थिंग हैपनिंग इन म्यांमार आल्सो इन सम वेज, इन अ डिफरेंट फॉर्म एंड फैक्टर, बट इट्स द सेम। वहां से जो I want to add a point on Jamaat. I just want to या extend one point on Jamaat. या The problem is that यस। Jamaat Islami हर जगह पर है, and it is in Pakistan, it is in Bangladesh, it is in India as well. In fact, Jamaat Islami has organized a lot of religious lectures in Maldives as well. In fact, पूरा Maldives को conversion करने के इंडोनेशिया। अंदर इंडोनेशिया के अंदर जमात का बहुत बड़ा हाथ है. And they are presently very active in Malaysia as well. Bangladesh ka Islamic Chhatra Shibir has an outstation in Malaysia. So when the Holy Artisan Bakery attack had happened in Dhaka quite a few years back, one of the primitive accused who died in the attack himself was Gufran Muhammad, and he was one of the very bright students of Bangladesh University. But he went to Malaysia where he got in touch with Jamati guys, and eventually he got some training outside, and the Holy Artisan Bakery attack happened. So if you understand terrorism from इसको इस तरह से समझिए that let's assume that terrorism is a corporate house. तो उसके अंदर Jamaat is technically the HR department, Saudi is the finance यस। department, and Americans are the CEOs. Right. So wherever you will find यस। the footprints of Jamaat, what exactly Jamaat is doing, it is doing the human resource recruitment part. Uh, to understand थोड़ा सा wide perspective में, if we go to Afghanistan and Khyber area, Pashtun वाला areas में अगर आप जाओ, you see a lot of terror groups. Say for example, आपका ISIS is also, or ISKP is operating over there, Taliban is operating over there, TTP is operating over there. तो सब लोग उसको समझते इस तरीके से हैं कि ये अलग अलग फैक्शंस हैं, अलकायदा अलग फैक्शन है, उनकी आइडियोलॉजी अलग है. The difference between the ideology of Islamic State and Al Qaeda was told to the world by Americans because it was designed in their own universities. ऐसा कुछ है नहीं. It is like a cyber corporate यस। park. अलग अलग कॉर्पोरेट कंपनीज खोल रखी हैं और कभी जिहाद कभी इज जिहाद इज देयर टूल। of course they are jihad is a tool, and I'm just explaining कि कोई डिफरेंस नहीं है आईएसकेपी या अलकायदा वगैरह में. ऐसा ही होता है जैसे कि कॉर्पोरेट में दो दोस्त होते हैं, बोलते हैं तेरे यहाँ पैकेज ज्यादा आ रहा है, मेरे यहाँ ज्यादा आ रहा है, तो मैं तेरे यहाँ स्विच कर जाता हूँ, तू मेरे यहाँ स्विच कर जा, एंड दे कीप ऑन स्विचिंग बिटवीन आईएसकेपी, अलकायदा, टीटीपी, तालिबान, ऐसे ही चलता रहता है. द सेम इज हैपनिंग इन जमात एज वेल. Jamaat's prime role is to do human resource recruitment and to capture land and resources so that Americans can come later and exploit it. The difference right now over here in the past 50 years is that Russians have started gaining their control, and they have actually started countering the American influence. The biggest problem over here is a threat to the American dollar. uh, Americans have played, in my opinion, Americans have played a very strong role in degrading the euro by pushing the entire Europe in funding NATO for the Ukraine war, and now Americans are stepping themselves back. उनको फंसा दिया वहां पे बुरी तरह से. But eventually, the Russian influence is definitely a problem for them. पिछले एक महीने में बहुत बहुत अच्छे इंसिडेंट्स हुए हैं. अच्छा इसलिए बोलूंगा बिकॉज इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव कैसे जा रहा है. तो जब इसराइल ने दे स्टार्टेड अटैकिंग इनटू सीरिया, one of the two important Russian bases in Syria are the Tartus and the Khmeim, right? Tartus is the naval base, and Khmeim is the air base where Russians have also parked Sukhois and Su-57 in fact also. बट जब इसराइल ने वहां पे बॉम्बिंग करना शुरू किया, देयर वाज नो काउंटर फ्रॉम रशियंस. एंड जब रशियंस ने अभी यूक्रेन में सडनली इंक्रीज करना शुरू किया है, देयर इज नो स्ट्रॉन्ग काउंटर फ्रॉम अमेरिकन्स. सो प्रोबेबली देयर एम्यूनिशन। इज अ बैक एंड डील जहां पे रशियंस आर स्टेपिंग बैक इन सीरिया एंड अमेरिकन्स आर स्टेपिंग बैक इन यूक्रेन. And a similar kind of deal can also
come in the near future for Bay of Bengal and Indian Ocean region. So we will. This is not a game limited to Bangladesh. This is a game much beyond it. Yes, to keep India in check, because see, eventually Pakistan is little or more irrelevant. See, अभी आप हम अगर borders ही देखें, तो हमारा जो western border है, it is quite at least for last 6-7 months. अब बांग्लादेश का border देखो, it is hot. Same goes for them जो वहाँ पे वो अपना पाकिस्तान के साथ में वो पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान जो करने का ट्राई कर रहे हैं. पॉइंट यहाँ पे ये इन यू नो चूंकि आपने ये अब इसको ले आए हो, सो द जो इस्लामिक टेररिज्म और जिहाद को टूल बना के जो हमें पसंद नहीं है उसको ओवरथ्रो करना है, उसको मरवा देना है, उसका यूज जो यूएस ने करना शुरू किया है, वो लार्जर पॉइंट है. वो हर जगह वो अपना शुरू करते हैं. इराक हो गया, आपके काउंटलेस एग्जांपल्स हैं जहाँ पे या तो जैसे पाकिस्तान वाला अभी देख लो, रिसेंटली पाकिस्तान में देख लो, अल्लाह अच्छा खासा चुनाव जीता जिताया, उसको इमरान खान को आपने कर दिया साइड में. या बांग्लादेश देख लो. सो द इश्यू इज जो 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 मुझे लगता है द कॉमन एनिमी इज, जैसे बोलते हैं ना, डेथ टू अमेरिका, जो पाकिस्तान या बाकी इस्लामिक कंट्रीज में बहुत ज्यादा है. इट विल बिकम लिटिल मोर जनरल ओपिनियन हो जाएगा ये, बिकॉज इवेंचुअली कोई भी प्रॉब्लम, दुनिया का कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो दो लोग सामने आते हैं उसमें. एक तो यूएस कहीं ना कहीं से होता है, दूसरा होता है इजराइल. इवन इन आर ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, आप देखो जो ड्रग डीलर्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, इवन द वेपन्स कहाँ से हमको दिए जा रहे हैं. सो सडनली बांग्लादेश इज नॉट लिमिटेड टू बांग्लादेश ओनली, इट इज अ ह्यूज इम्पैक्ट. आप इंडिया को अगर चेक एंड बैलेंसेस में, जैसा कि वो जो जिस टाइप की चीजें इंडिया के लिए यूज करते हैं, चाहे वो यूएस हो गया या फिर बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हो गई, वो दे ट्रीट अस लाइक अ डोरमेट टाइप का. अरे यार ये इतना बड़ा कैसे हो सकता है. तो हम तो पाकिस्तान के साथ तो ऑलमोस्ट 1/3 बॉर्डर शेयर करते हैं, जितना हम बांग्लादेश से करते हैं ऑलमोस्ट 3800 है. तो हमारा जो मेजर जो रिसोर्सेज है वो तो अभी उधर जाने वाला है. तो ये इस टाइप का चल रहा है अभी. लेट्स सी. Right. So, okay. If anyone has to add anything, okay. Thanks, Shyam bhai. Thanks, Polydamas bhai. Sir, thank you. Thanks everyone for डन. joining. थैंक यू. रात को if we'll see. थैंक यू. I mean, we'll see if we can have one more रात को session. we'll go with the questions अगर टाइम है तो. Yeah. ठीक है. Okay. Thanks. Bye. ओके. थैंक यू Thanks. एवरीवन. Thank you.